Hello student, good morning. Yesterday I discussed the defects in the solid. Now today I will discuss the property. Property of the solid on the basis of electronic. What are the properties? First, there are on the basis of conductivity, electrical conductivity, there are three type of solid. One is conductor, one is insulator, one is semiconductor. And the conductivity is for the conductor is very high. Here is in plus 10 to power 7. Motion of electron is free. Why they are good conductor? Because electrons are very free to move. There is conductivity between 10 to power 4 to 10 to power 7, which is very high. Okay. And metal like aluminum, silver, copper, iron, these are the good conductor, and the silver is the best conductor. Next one is the insulator. Here is the conductivity 10 to power minus 20, 10 to power minus 10, which is very low. Okay. And here is no permission of electricity because free electrons are not available. Woods, rubber, bakelite, plastic, these are the insulator through which cannot electricity pass. Next one is the semiconductor. Conductivity is between 10 to power minus 6 to 10 to power 4, which is moderate type. Motion of interstitial electrons or holes takes place. Here is the conductivity due to motion of electron, free electron or holes, or it may be both. For example, silicon and germanium are the two. Okay. Next, you can see here, in case of conductor, there are two bands. One is the conduction band, okay, and other is valence band, VV. Okay. Here you can see that conduction band overlap over the valence band. Therefore, flow of electron is here very easy. But in case there is a big gap, which is known as forbidden zone, between the conduction band and the valence band of the insulator, through which passing of electron from one band to another band is impossible. Okay. But in case of semiconductor, here is very little gap between conduction band and the valence band, very small gap. Therefore, on heating, electron can jump from valence band to conduction band, but it will be very costly. But on doping some material between these, it works as a good conductor. Once again, student, here is on the basis of conductivity, there are three type of conductor. स्टूडेंट, कंडक्टिविटी के बेस पे अगर हम देखें तो तीन तरह के हैं सॉलिड. एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर, एक सेमी कंडक्टर. कंडक्टर 10 टू पावर 4 से 10 टू पावर 7 तक कंडक्टिविटी है इनकी कंडक्टर्स की, जो कि बहुत हाई है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री मोशन के लिए होते हैं. मेटल्स लाइक सिल्वर एंड एल्युमिनियम, कॉपर, दीज आर द गुड कंडक्टर्स. इंसुलेटर, here is conductivity 10 to power minus 20 to 10 to power minus 10, very low, which is very low. यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन परमिट नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी परमिट नहीं होगी. ओके. वुड, रबर, बैकेलाइट, दीज आर द insulator. Next one is the
सेमी कंडक्टर 10⁻⁶ to 10⁻⁻। हेलो, हाँ सर। अच्छा, ओके सर। ओके, therefore semiconductors here is 10⁻⁶ to 10⁻⁴, which is moderate, means motion of interstitial electron, the electron which is found in between the spaces. These are the available for the conduction. Holes are also available, we will see later, and both may be holes and electron both may move, सच टाइप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे 3 तरह के सॉलिड हो गए, ठीक है। 3 तरह के सॉलिड हो गए, एक कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया और सेमी कंडक्टर हो गए। कंडक्टिविटी जो कंडक्टर की वो 10⁴ से लेकर 10⁷ तक होती है, जो कि वेरी हाई होती है। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन चूँकि मोशन के लिए अवेलेबल होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। और यहाँ पे सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, वैल्यूएबल मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर। Insulate, you can see that silver is the best conductor, you have learned in the 10th class. Insulator have 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 conductivity, which is very low. यहाँ पे कोई भी परमिट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कि मूव नहीं कर सकते फ्रीली। यहाँ पे वुड, रबर एंड बैकेलाइट एंड अदर प्लास्टिक ये सब होते हैं। सेमी कंडक्टर अगला है, जिसमें 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ होता है, लिख दिए। एंड मॉडरेट, इनके अंदर जो है कि कैपेबिलिटी होती है, कंडक्टिविटी जो होती है वो बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है। तो यहाँ पे 2 तरह के कंडीशंस होती है कि इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री होता है मूव करने के लिए, और होल्स होते हैं मूव करने के लिए, या तो कभी कभी बोथ मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं। अब ये स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये सारी कंडक्टिविटी के पीछे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो कंडक्शन बैंड होता है वो बैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैप करता रहता है। ये बैलेंस बैंड दिखा रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये इम्पटी है, ये खाली है, और ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अब फ्री है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो कंडक्शन बेटर होगा, बहुत अच्छे से होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि फॉरबिडन जोन है, ये गैप बहुत ज़्यादा होता है। गैप क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हम कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचा सकते, ठीक है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसको हम फॉरबिडन जोन कहते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है, थोड़ा ये गैप कम होता है। इसको हम यहाँ फिर से देख सकते हैं इस तरह से कि सपोज ये एक बैंड है, अब यहाँ पे ये कंडीशन है, रियल में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है, सॉरी ये वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें, और ये कंडक्शन बैंड है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप जो होता है थोड़ा कम है, तो हम 2 तरह से कंडक्शन यहाँ पे करा सकते हैं। या तो यह करें कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, क्योंकि ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि यहाँ पे गैप कर जाए, जंप कर जाए, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ इम्प्योरिटी के रूप में यहाँ पे मिला दें, अगर सपोज कि अगर हम यहाँ पे कुछ मिला देते हैं इम्प्योरिटी के रूप में, कुछ दूसरे एलिमेंट्स को मिला देते हैं कुछ इस तरह से, तो अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, अगर इस तरह की कंडीशन हम पैदा कर दें तो। ओके,
तो ये सेमीकंडक्टर यहाँ पे कंडक्शन आसानी से कर देता है। तो यहाँ पे हमें डोपिंग करना पड़ता है, हमने कुछ मिलाया तो क्या हो गया, डोपिंग हो गया, वो हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन हीटिंग, जो हमने यहाँ पे बात कही कि अगर चाहे तो हम हीट करके भी जो है कि कंडक्शन यहाँ करा सकते हैं, तो उसको कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड, जब हम प्रेशर वगैरह या पोलर क्रिस्टल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, अगर इलेक्ट्रॉन आयंस के डिस्प्लेसमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसे हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कंपटीशन वगैरह में भी पूछता है, मल्टीपल चॉइस में भी पूछता है। तो जहाँ पोलर क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, दिस इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आखिर सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से हैं, यहाँ पे किस किस तरह के होते हैं। तो पहला तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁴ to 10⁷, ओके, आर नोन एज द सेमीकंडक्टर्स, इनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इसमें क्या है, हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Cu2O एंड सिलिकॉन कार्बाइड एंड जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक एलॉय, इतने हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं जिनका हम यूज़ करके कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब हमने कुछ मिलाया ही नहीं, कोई डोपिंग की ही नहीं, कोई चीज़ भी हमने इसके अंदर मिक्स नहीं किया, डायरेक्ट हीट कर दिया, पायरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, तो दैट इज़ द सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने कुछ भी उसके अंदर नहीं मिलाया, सिंपली हमने हीट पैदा की। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो देयर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। व्हाट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज मीन्स यहाँ पे हम डोपिंग करेंगे समथिंग, वी विल डोप between the gap, energy gap between the conduction band and the valence band. You can see here, this is the conduction band and this one is the valence band. This is the VB valence band and this one is the conduction band CB. अब इस पूरे को हम मिला करके जो है यहाँ पे हमने कुछ मिक्स नहीं किया तो क्या हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। अब अगर यहाँ पे हम कुछ फिलअप कर देंगे, भर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, इसको मिलाने के प्रोसेस को डोपिंग। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। डोपिंग of silicon and germanium is carried out by the phosphorus, arsenic, antimony, boron, aluminium, gallium। अगर हम कुछ भी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे हमने बताया, क्या बताया था कि अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है कम है और इसको हम हीट प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जिसको हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब प्रोसेस में क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जब हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो हम कंडक्टर के रूप में ले पाएंगे, तो हर तरफ से एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है कि हमने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डोपिंग। इट इज़ डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो एज ए सेमीकंडक्टर इट वर्क। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमने लिया।
तो इसके अंदर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम कुछ भी मिला सकते हैं। अब इस मिलाने के बेस पे देखा जाए, डोपिंग के बेस पे देखा जाए तो दो तरह के कंडक्टर हैं। एक तो एन टाइप सेमी कंडक्टर है। what denote n for negative for free electron, you can say free electron. Now you can see, suppose this one is the silicon, okay, and silicon have 4 electron in outermost shell, okay. एंड नेक्स्ट वन इज द, अब हम इसके अंदर हम फास्फोरस मिला देते हैं। सपोज हम इसके अंदर फास्फोरस पी मिला देते हैं। फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है और इसके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके यहाँ पे हमारा ये सिलिकॉन है, SI 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 1 2 3 4 and 5th electron is interstitial. This one is the 5th electron. This one is the interstitial. Now it is free to move. Then the conductivity of this semiconductor is due to the free electron. An electron have the negative charge. You know that. This is, therefore it is known as n-type semiconductor. Thus silicon is doped with the 15th group element like the phosphorus. Okay, phosphorus. It is called n type of semiconductor because conductivity is due to the presence of negative charge or electron, you can say. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि n टाइप से हमें क्लियर कट पता लगा। n फॉर नेगेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग जानते हैं बच्चों कि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो अगर हम 15 ग्रुप को मिला देंगे जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन 15th ग्रुप का 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ शेयर कर लेगा। तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन बचेगा फास्फोरस का, वो मूव करने के लिए रेडी रहेगा। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी किसके कारण हो गई? गुड, वो हो गई फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्फोरस। तो यहाँ पे नेगेटिव के कारण हुई है, इसलिए एन टाइप हो गया। नाउ अब हम लोग देखेंगे पी टाइप में कि पी टाइप में क्या है। ठीक है, पी टाइप में हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसा नाम सजेस्ट करता है पी फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल जाए तो जगह खाली बचेगी और यहाँ पे होल बच जाएगा, और उस होल को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव होल। ओके, तो यहाँ पे कंडक्शन किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल। हम इसको आसानी से देख सकते हैं। अब इस पॉजिटिव होल को क्रिएट करने के लिए हम सिलिकॉन के अंदर 13th ग्रुप को मिला देते हैं। अब वो 13 ग्रुप का जैसे हमारा गैलियम है, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और यहाँ पे कंडक्टिविटी होल के कारण होती है। हम इसको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना करके। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सपोज ये
ये सिलिकॉन है। अब ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे हमने गैलियम मिला दिया, Ga। एल्युमिनियम भी मिला सकते हैं, उसी ग्रुप का गैलियम है। बोरान भी मिला सकते हैं, ये हो गया Ga। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि गैलियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली इट हैव 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। अब यहाँ पे बच गया होल। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली जगह पड़ी है, ये वैकेंट स्पेस है। दिस वन इज नोन एज होल। वैकेंट स्पेस को हम होल का देते हैं। होल। अब ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर चला जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाएगा तो ये पीछे होल छोड़ देगा, यहाँ पे पीछे होल चला जाएगा। तो इस तरह से जगह वैकेंट होती जाएगी, हर बार वैकेंट होती जाएगी और इस होल की वजह से कंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि होल की वजह से कैसे कंडक्शन होता है और इसकी वजह से कैसे कंडक्शन होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी सम टिपिकल, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, कि 13 और 15 को मिला करके भी हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जिसमें निकेल, Sb, इंडियम और एंटीमनी है, एल्युमिनियम, फास्फोरस को भी मिला के बना सकते हैं, गैलियम आर्सेनिक को मिला करके भी बना सकते हैं। ये सब क्या है, टिपिकल जो है कि ये यहाँ पे सल्फ़र और ऑस्मियम है। ठीक है, OS। ठीक है, तो ये जस्ट मिनट, कंफ्यूजन। यहाँ पे 12 ग्रुप का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पोलोनियम। ओके, पोलोनियम और 16 ग्रुप का जो सल्फ़र है उसको भी मिला करके बना सकते हैं। और यू कैन से, एक मिनट, सबसे इजी है कि हम ले लेते हैं सल्फ़र और ऑस्मियम, सल्फ़र एंड सेलेनियम, Se। तो ये हो गया हमारा 12th ग्रुप का। फोर्टीन्थ ग्रुप में पोलोनियम हम सही पड़ेगा। यहाँ पे हम पोलोनियम और सल्फ़र ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे सही है। सल्फ़र हो गया 16 ग्रुप का और पोलोनियम हो गया 12th ग्रुप का। ठीक है, और भी चाहे तो 12th ग्रुप का ले सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है यूज़ की जाती हैं आजकल। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर्स भी कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया।
अब इसके बाद आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम लोग बच्चों जानते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो जो है कि कंडक्टिविटी के लिए और वो जो है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 11th में हमने पढ़ा कि एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है एक टाइनी मैग्नेट का काम करता है जिसको हम डोमेन्स कहते हैं। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर अगर कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है तो दैट इलेक्ट्रॉन विल वर्क एज द स्मॉल टाइनी मैग्नेट बिकॉज इट इज एबल टू मूव। ओके, तो ये डोमेन्स है। डोमेन्स क्या होता है? एक छोटा सा मैग्नेट होता है। अब जिस तरह से मैग्नेटिक पोल डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह से ये होता है। और इस बेस पे अगर हम देखते हैं तो सॉलिड को पहला तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, वीकली रिपेल्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो रिपल्शन बहुत कम शो करता है, मतलब कोई अट्रैक्शन भी नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन, चूँकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे को जो है कि नलीफाई कर देते हैं। अगर सपोज यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड कर दिया ऐसे, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो अब यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? नलीफाई हो जाएगी। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और यहाँ पे बेंजीन है, सोडियम क्लोराइड है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक बस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर देखते हैं तो इनके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है कि जो रोटेशन होगा, फ्री स्पिन होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का, वो उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखे रहेंगे। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, इफ़ वी पुट इन द मैग्नेटिक फील्ड दे शो अट्रैक्शन but diamagnetic show repulsion. So therefore since there is a attraction in the magnetic field, therefore these work as the paramagnetic substance. Okay, and they have at least one unpaired electron such as O2, Cu2 plus, Fe3 plus. These are the paramagnetic and most of the d block elements are the paramagnetic. Next one is the ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance, these have the permanent magnetic property, even they have absence of the magnetic field also. Why it is so? Because they have the number of unpaired electron. If you will see the electronic configuration, बच्चों ये जो सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी। उसका कारण है कि एक बार मैग्नेटाइज हो जाने के बाद ये फिर से इनको मैग्नेट के ही तरह काम करते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा इसलिए होता है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए एक बार वो मैग्नेटाइज हो गए तो परमानेंटली हो जाते हैं। इसलिए निकिल का और आयरन का कोबाल्ट और निकिल के जो है कि बनाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यहाँ पे बस कारण क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये हमारा डी सब सेल है, ठीक है। अब इसके बाद एक यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है सपोज, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो यहाँ पे कंपनसेटरी हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन कभी कभी हो जाती है, जैसे इन सारे सब्सटेंस के केस में अलाइनमेंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जो है जीरो हो जाता है, तो इसको हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जबकि यही कंडीशन यहाँ पे इनके केस में देखा जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, तो इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे तो यहाँ पे हम देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो अगर सब एक डायरेक्शन में है तो अलाइनमेंट का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है।
कोई यहाँ पे रिपल्शन नहीं होने वाला है, कोई निगलेक्शन नहीं होने वाला है, कोई किसी को जो है कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो इस वजह से ये फेरोमैग्नेटिक है और ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट आता है फेरी मैग्नेटिक। इसमें कुछ ना कुछ ऐसे है कि डाइपोल मोमेंट एटलीस्ट मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ मिल जाएगा ड्यू टू अनइक्वल रिपल्सन। एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, इसमें कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, जिसमें जो है कि कंपनसेटरी अलाइनमेंट नहीं आता है, वो फेराइट है, Fe3O4 है, ये सब मैग्नेटाइज जाते हैं, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि अनइक्वल पैरेलल और एंटी पैरेलल जो अलाइनमेंट होते हैं, तो एटलीस्ट वन एक ऐसा मिल जाता है जो कि फ्री रोटेशन के लिए अवेलेबल रहता है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, तो स्टूडेंट आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें कल की डेट में, कल नेक्स्ट डे हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, न्यूमेरिकल डेंसिटी वगैरह के जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर